If I am audible, then just write in the chat box. You all are not allowed to turn on your voice, but you can still chat in the chat box. So, just give me. Am I audible now? Is it still echoing? Hello? Hello? If there is no echo, then do write in the chat section. Okay. So, hello everyone. Today we are going to start in Express 26. You all know about it. We have briefed you all about in Access. It's different program, it's different events, and the different workshops we will be taking in order to teach you some important things. So today's session is about Git and GitHub. First of all, being a so first of all, being a CS graduate or a engineering student, you must know about the topic of version control. Whatever is written in this PPT in this session, we will be first of all mastering the version controls basics, then track software, change code changes, then collaborate and then contribute. See, the first topic I was talking to you about was the version control. Nowadays, the VS Code provide us with the auto save capability, but when in earlier times there was no such capability to save our already existing code or even go back in the history. So version control is simply derived from its term, the version. We simply make version of our code and then we track them using the version control softwares. In this field, basically we will be starting with Git. See, Git is not the first version control system, but it is open source and it is free. The two main reasons why Git is still the favorite for most of the people. Before it, different SCMs were used, but they were costly, and along with it, they did not provide much flexibility. Okay. Even now, some companies use their own version control system, but today we'll be only focusing on Git. Linus Torvalds created it in to track his Linux programs. Git operates as a distributed version system. Here, distributed means the your code lives on two different distributed platforms. The first one is remote, and the second one is local. Distributed is just signifying this process, and we have to synchronize the data in order to work efficiently with the distributed part of it. Okay. Now, first of all, how to install Git. See, I am not diving into the basics of Git or what exactly Git does because it would be a bulky information for you all. So if you all are on your laptop, then do try to follow me. Okay.
If you want some time, then I can spare about 2 to 3 minutes. If you want to set up your computer for it, just write in the chat box. अच्छा भाई, देखो, अब कल हिंदी में तुम्हें समझाने वाला हूँ क्या होता है गिट और कैसे डाउनलोड करें। देखो, सबसे पहली बात, आराम से पहले हम लोग इंस्टॉलेशन सीखेंगे। सिंपली न्यू टैब पे जाओ, न्यू टैब पे जाओ और गिट एससीएम, गिट एससीएम वेबसाइट है, गिट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जैसे ही तुम लैंड करोगे वैसे ही तुम्हें मिलेगा यहाँ इंस्टॉलेशन। यहाँ चूंकि मैं लिनक्स पे अभी हूँ इसलिए यहाँ पे इंस्टॉल फॉर लिनक्स है। ये तुम्हारा जो वर्जन, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग देगा। अगर तुम्हें नहीं मिल रहा है तो यहाँ तुम इंस्टॉल पे जाओ और यहाँ इंस्टॉलेशन, विंडोज हो तो विंडोज, मैक, लिनक्स, बिल्ड फ्रॉम सोर्स मैंने तुम लोग को सजेस्ट करूंगा अनटिल एंड अनलेस यू तुम लोग आर्च या निक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे हो। आराम से यहाँ से डाउनलोड करो, अलग अलग वर्जन के लिए अलग अलग पार्ट है। सबसे पहले डाउनलोड करना, देन अगेन install the Git on your local machine. Distribution usually include the Git out of the box, Debian user run these commands, वो सब तुम वहां देख लेना। हाँ, बात यह है कि जो गिट एससीएम वेबसाइट है ये थोड़ी मैं सजेस्ट करूंगा तुम यहाँ पे जाके और डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में मत पड़ना। यहाँ से सीधे इंस्टॉल करो और हट जाओ, वापस आओ। फिर हम लोग अभी बात करते हैं सेल नेविगेशन सिस्टम्स की। ठीक, मैंने एक फाइल खोली, ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ सेल नेविगेशन सिस्टम्स, ताकि जब तुम्हें गिट रिपोजिटरी के अंदर जाके और कमांड लाइन पे काम करना पड़े तो तुम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी इस रिपोजिटरी में हूँ, ओपन इंटरनल सी। So let's talk about the different commands. First of all, see, ls it simply prints the content, but अगर तुम लोग को प्रॉब्लम आ रही है ls से समझने में तो ls डैश l कर लो, a डैश l पे भी अच्छा काम करेगा। ये सिंपली कितनी बड़ी है और ये कब इसको क्रिएट किया गया था और कौन सी रीजन में क्रिएट किया था ये भी बता देता है। ls डैश l, पहली बात ये लिनक्स कमांड्स हैं, तो जब तुम लोग आगे सर्वर्स पे काम करोगे तो ये ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। देन rcd कमांड, cd ऐसे कुछ नहीं करता है, देखा। बेसिकली cd है क्या, अगर मुझे ls करके मैंने अगर ls किया, मैं फिर से यहाँ आ रहा हूँ। सी, अगर मैंने ls किया तो ये अलग अलग फाइल्स आई, cd डॉट 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 का मतलब मैं बाहर निकल गया पेरेंट डायरेक्टरी। अब देखो यहाँ ls किया तो यहाँ अलग अलग है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं जाना चाहता हूँ किसी एक में, अगेन मैं एसएलएम इम्प्रूवमेंट में जाना चाहता हूँ। देखो अभी मैं गिटहब फोल्डर में हूँ, मैंने pwd किया तो इसने बताया कि मैं होम देन अमर देन गिटहब फोल्डर में हूँ। ठीक, cd आई थिंक पहले वो आ गया है, पहले ऐसा समझो। pwd समझ में आ गया, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, इसका बस यही मतलब है, जिस भी डायरेक्टरी में हो उसको प्रिंट करेगी। उसके बाद ls ये लिस्ट करेगी, जैसे जीनोम टर्मिनल, ये सब अलग अलग
फाइल्स हैं और अलग अलग फोल्डर्स हैं, ये फाइल है ये फोल्डर है। सीडी क्या करेगा, चेंज पाथ, चेंज डायरेक्टरी, ये डायरेक्टरी चेंज करेगा। जैसे सीडी और मैंने लिखा एसएलएम इम्प्रूवमेंट, तो अब मैं एसएलएम इम्प्रूवमेंट हूँ। अब अगर मैं पीडब्ल्यूडी करूंगा तो जो पहले मैं सिर्फ गिटहब में था वो अब मैं गिटहब के अंदर एसएलएम इम्प्रूवमेंट नाम की डायरेक्टरी में हूँ। देन आरएम, ये फाइल्स परमानेंटली रिमूव करता है, एमकेडीआई मेक करता है, और टच जो है एक नई फाइल क्रिएट करता है। मैं दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल टच, टच, और मान लो कि a.py, चलो पहले मैं एक बार एलएस कर लूँ। देखो इतने फाइल्स हैं यहीं तक, ट्रेन तक। अब मैं अगर करूँ टच न्यू जेड न्यू डॉट टीएक्सटी, और अब मैं फिर से एलएस करूँ सी, इसके पहले जेड न्यू डॉट टीएक्सटी नहीं था, अब जेड न्यू डॉट टीएक्सटी। टच मतलब वो फाइल क्रिएट करेगा, सिंपली ऐसे एमकेडीआईआर और एग्जाम्पल मैंने क्रिएट किया, एमकेडीआईआर इन एक्सेस। अब देखो अगेन मैंने एलएस किया, पहले एमकेडीआईआर, पहले इन एक्सेस नहीं था, अब इन एक्सेस भी है। मेरे टर्मिनल की सेटिंग्स में जो फोल्डर्स हैं वो पर्पल में है और फाइल जो है वो व्हाइट में है। अब बात करते हैं आरएम कमांड की। ये सिंपली आरएम मतलब रिमूव, एमकेडीआईआर मतलब मेक डायरेक्टरी, टच मतलब क्रिएट न्यू एम्प्टी फाइल, और आरएम मतलब सिंपली रिमूव। मैं तुम लोगों से के साथ एक फाइल शेयर कर दूंगा जिसमें ये सारे कमांड्स होंगे, अभी बस इन्हें समझ लो, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी को कुछ ना समझ में आए तो तुम लोग डायरेक्टली चैट बॉक्स में लिखो, मैं क्वेरीज को रिजॉल्व करता चलूंगा, ये नहीं कि बाद में पूछ लेंगे। हाँ अब देखो आरएम, जो हमारी नई फाइल थी उसी को हम लोग रिमूव करने का ट्राई करते हैं, न्यू डॉट टीएक्सटी। अब फिर से मैं एलएस करता हूँ, देखो इस बार जेड न्यू नहीं है। ये सिंपल सा है। प्रॉब्लम कहाँ आती है मैं बताता हूँ, आरएम, और अगर मैं इन एक्सेस करूं तो आ गया, कैन नॉट रिमूव इन एक्सेस, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तुम्हें जब भी किसी से काम करना होगा, तुम्हें जब भी किसी फाइल के साथ काम करना होगा तो हमेशा डैश आर फ्लैग का यूज करोगे, डैश आर। अब आरएम डैश आर, अब मैं इन एक्सेस अगर लिखूं तब वो रिमूव हो गया सिंपली। दिस वाज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द सेल कमांड्स, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। हाँ अब कितने लोगों ने, अच्छा एक काम करो चैट में सब लोग लिखो जिन जिन लोगों ने गिट इंस्टॉल कर लिया इतने देर में, या फिर गिट इंस्टॉल पे लगा दिया है। भानु प्रताप लास्ट में, नहीं नहीं ये नहीं। ओके गुड। सो अब इंस्टॉल कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग गिट में कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। कॉन्फ़िगरेशंस बेसिकली क्या है, हम लोग गिट में को ये बताते हैं कि हमें एनवायरनमेंट्स कैसे चाहिए। एक काम करते हैं, मैं एक एम्प्टी डायरेक्टरी में जाता हूँ, मैं फिर से नई फोल्डर बनाता हूँ, एमकेडीआईआर नेक्सस। ओके, मैं उसमें सीडी करता हूँ। अब सबको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर मैं इसमें कोड डॉट लिखूंगा, तो इसमें वीएस कोड डॉट का मतलब सेम फोल्डर में खोलो, मेरा वीएस कोड ओपन हो गया। ठीक, यहाँ तुम लोगों को मैं चला के दिखा रहा हूँ ताकि तुम लोग को आसानी से समझ में आए। ठीक, अब देखो चूंकि मैंने गिट को ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखा है, इसलिए अगर मैं गिट कॉन्फ़िग डैश डैश लिस्ट लिखता हूँ तो सिंपली ये मेरा लिस्ट देगा। जैसे मैंने डिफॉल्ट ब्रांच मेन बताई है, जो मेरा यूजर का ईमेल है मैंने ये बताया है, यूजर नेम बताया, कोई एडिटर बताया, एलएफएस वगैरह चीजें बताई। तुम लोगों को इतने की जरूरत नहीं है।
और जिन लोगों ने इंस्टॉल कर लिया वो इन सब कमांड्स को रन करें, मैं जो बता रहा हूँ। ठीक, सबसे पहले 2-3 चीजें कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल गिट कॉन्फ़िग डैश डैश ग्लोबल। अब देखो, पहले मैं समझा दूं, क्योंकि तुम लोग अब हमेशा यूज करोगे, तो यहाँ पे जैसे नाम है ना, जैसे मैं मुझे अपना नेम करना है तो मैं सिंपली गिट कॉन्फ़िग यूजर डॉट नेम। अब देखो अभी यहाँ तक अमर्त्य पांडे लिख रहा था, अब अगर मैं यूजर डॉट नेम अमर्त्य शिफ्ट कर दूं, तो यहाँ चेंजेस आए ना, ये है गिट कॉन्फ़िग, और ये कॉन्फ़िग फाइल को रीड करता है। गिट कॉन्फ़िग का यूज कहाँ, इतना सबको समझ में आया गिट कॉन्फ़िग क्या होते हैं? कॉन्फ़िग्स आर बेसिकली द कॉन्फ़िगरेशंस यू टेल अबाउट द गिट। यू जो तुम गिट को ऐसे समझाते हो कि भाई देख, अगर जब भी मेरे नाम पे तुम्हें पुश करना होगा या फिर जब भी मेरे बारे में कुछ तुम्हें सेव करना होगा, तुम इन चीजों को लेके सेव करना, मुझे आइडेंटिफाई करना। ऐसे ही तुम लोग एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे इसको कोड कर लेना। वो मैं बता दे रहा हूँ तुमको, एक कोड डॉट एडिटर कोड, ताकि वीएस कोड में खुले। git config git stores this variable in dot git config global settings। हाँ, एक चीज जो कि ज्यादातर ट्यूटोरियल्स में नहीं बताया जाता है, मैं समझा दे रहा हूँ। गिट में तुम लोग दो चीजें कॉन्फ़िगरेशंस में ध्यान देना, एक होता है तुम्हारा गिट कॉन्फ़िग और उसके बाद जो भी कमांड होता है, ठीक, और एक दूसरा होता है गिट कॉन्फ़िग डैश डैश ग्लोबल। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सी, जैसे तुम लोग जो ज्यादातर यूज करते होंगे वीएस को, तुमने ध्यान दिया होगा जो सेटिंग्स होती हैं, जैसे मैं सेटिंग्स में जाऊं तो इसमें भी ये यूजर एंड वर्कस्पेस सेटिंग्स होती हैं। सिंपली गिट में भी यूजर बोलो या ग्लोबल सेटिंग्स बोलो, वर्कस्पेस सेटिंग्स सिर्फ उसी गिट फोल्डर में होती हैं। ठीक, ये बाद में समझाऊंगा मैं, जब मैं गिट इनिट कर लूंगा तब, उसके बाद। अभी इसके आगे चलते, एसएसएच ऑथेंटिकेशन। सी, इसके लिए एक अलग से गिटहब ने डॉक्यूमेंटेशन डाली है। ये बेसिकली तुम्हें ऑथेंटिकेट करता है कि तुम कनेक्शन बना पाओ अपने रिमोट और तुम्हारे जो भी लोकल डायरेक्टरी है उन दोनों के बीच में। ठीक, इसके बाद इस पे बाद में आएंगे हम लोग, सबसे लास्ट में आएंगे एसएसएच ऑथेंटिकेट करने के फेज पे। अब देखो, ये सिंपल गिटहब का है, मैंने जो जो समझाया मेनली वही है, एक बार मैं फिर से तुम लोगों को बता दे रहा हूँ। एक्ट एज अ सेंट्रल हब फॉर, ये गिटहब के बारे में, एक्ट एज अ सेंट्रल हब डेवलपर पुश लोकल प्रोजेक्ट्स रिपोजिटरी एज एज एक्ट एज प्रोजेक्ट फोल्डर। हाँ, एक और बात, कुछ टर्म्स हैं, 2-3 टर्म्स जिनका एक ही मतलब होता है, फोल्डर, रेपोजिटरी, डायरेक्टरी, इनका लगभग सेम मीनिंग होता है। रेपोजिटरी को तुम एक तरह से बड़ा फोल्डर जिसके अंदर सब कंटेन होता है वो समझ सकते हो, समझ में? तो फोल्डर और डायरेक्टरी वर्ड इंटरचेंजेबल है, वो इंटरचेंजेबली ही यूज होते हैं। इसमें दो तरह की होती हैं, पब्लिक रिपोजिटरीज एंड प्राइवेट रिपोजिटरीज, ये मैं समझा दूंगा। जैसे सिंपली देखो, पब्लिक एंड प्राइवेट रिपोजिटरीज क्या होती हैं। मैंने अपना ये खोला, ये मेरा प्रोजेक्ट जो है, यहाँ पे देखो पब्लिक लिखा हुआ है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसे इनकॉग्निटो मोड में खोला, यहाँ पे मेरा गिटहब लॉगिन नहीं है, तो मैं इसे खोल पा रहा हूँ। ठीक, लेकिन वही अगर मेरी कोई दूसरी रिपो है जो कि मैंने क्लोज सोर्स करके रखी है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक, मैं इसे चेंज करता हूँ सिंपली, चेंज विजिबिलिटी। ये 2-3 चीजों का तुम लोग ध्यान रखना, क्योंकि जैसे ही तुम लोगों ने किसी रेपो को प्राइवेट किया, उसके बाद से लोगों के पास तुम्हारा एक्सेस नहीं रहेगा। तो इससे क्या होगा, तुम्हें अगर हमसे शेयर करना होगा कोई भी रेपो, तो हमें वो शो नहीं करेगा, वो 404 एरर देगा और फिर प्रॉब्लम आती है। सेम गोज फॉर जब तुम अपने प्रोजेक्ट्स होस्ट करके और अपने रेज्यूमे में उसकी लिंक ऐड कर रहे हो। ठीक है, अब देखो, अब ये जो रेपो है, ये
प्राइवेट हो गई है। अब देखो 404 एरर आया ना, ये है पब्लिक और प्राइवेट रिपोजिटरीज। पब्लिक रिपोजिटरीज सिर्फ तुम्हें दिखेंगी, और तुम जिनको कोलैबोरेटर्स ऐड करोगे, यहाँ सेटिंग्स में जाकर और कोलैबोरेटर्स यहाँ ऐड होते हैं, इस टैब में जब जाओगे, इन्हें यहाँ पे जिन लोग ऐड करोगे उन्हें ही सिर्फ दिखेगी, इस बात का ध्यान रखना। नाउ लेट्स कंटिन्यू टू मेंटेनेंस ऐड कोलैबोरेटर्स। मैंने जैसे कोलैबोरेटर्स बताया, कोलैबोरेटर्स के पास पुश एक्सेस भी होता है और व्यू एक्सेस भी होता है। जो सिंपल व्यूअर होती है पब्लिक होती है, और रिपोजिटरी अगर पब्लिक हुई, दोनों चीजें हुई, तो उनके पास सिर्फ व्यू एक्सेस होगा। उसके बाद द readme डॉट एमडी, इसके बारे में बात करेंगे। readme डॉट एमडी फाइल इज बेसिकली, तुम लोगों को बताते हो कि प्रोजेक्ट है क्या एक्चुअली। जब भी किसी अच्छे प्रोजेक्ट को तुम बनाओ तो उसमें जरूर ऐड करना है। जैसे ये हम लोग का एक प्रोजेक्ट था, तो इसमें मैंने एक रीडमी फाइल बनाई है और एक लाइसेंस फाइल, दो चीजें होती हैं। रीडमी फाइल क्या होती है? वो उस प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू देती है, उस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कैसे करना है ये बताती है, इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस कैसे यूज करना है इसके बारे में बताती है, और उसके जो भी ट्रिवियाज वगैरह वगैरह चीजें हैं, कंट्रीब्यूटर्स हैं, ये सब बताती है। ठीक, ये हो गई रीडमी डॉट एमडी फाइल। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है मेरा। अगर मुझे अपने कंपनी को एक वो भेजना है, नॉट टू पब्लिक, मुझे, मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ और मुझे अपने कुछ कलीग्स के साथ एक नए प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीजें करनी चाहिए? रेपो के जो एक्सेस है उसमें कैसा रखना चाहिए? पब्लिक रखना चाहिए या प्राइवेट रखना चाहिए? चैट बॉक्स में जल्दी लिखो ताकि हम लोग आगे बढ़े। ओके, लेट्स कंटिन्यू। हाँ, बहुत बढ़िया इंसान, हमें प्राइवेट रखना चाहिए। सी, तुम कोलैबोरेटर से ऐड कर सकते हो, और जो भी लोग उसे उन्हें ऐड करके, और उसे तुम्हें मतलब ही नहीं है ताकि दुनिया तुम्हारा कोड क्यों देखेगी। वो था गिटहब की कोलैबोरेटर सेटिंग्स और उसकी एक्सेस रेस्ट्रिक्शंस। एक गुड डॉक्यूमेंटेशन एनकरेज अदर डेवलपर्स टू इम्प्रूव द प्रोजेक्ट। भाई सिंपल सी बात है, अगर मेरे डॉक्यूमेंटेशन में ये साफ लिखा हुआ है कि मुझे यूज कैसे कर, मुझे इंस्टॉल कैसे करना है, मुझे यूज कैसे करना है किसी भी वेबसाइट को, उसके हर सिंपल से सिंपल स्टेप्स के बारे में लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं उसे यूज करना पसंद करूंगा कंपेयर टू एक ऐसा चीज जो कि बहुत बढ़िया है लेकिन उसके बारे में कुछ इन्फो नहीं है। इसके एनालॉजी तुम ऐसे समझ सकते हो कि एक बहुत अच्छा घर है और एक ठीक ठाक काम चलाऊ घर है, लेकिन अच्छे घर में जो है वो दरवाजा ही नहीं है, किसी काम का नहीं है वो अच्छा घर। लेकिन अगर वही ठीक ठाक काम चलाऊ टाइप जिसे अगर बोल सकते हो, अगर वैसा घर है, तो इट इज वेल नोन फैक्ट कि लोग उसे प्रिफर करेंगे। अ गुड डॉक्यूमेंटेशन इज लाइक अ डोर इन हाउस। सिंपल सी बात है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी चीज है। देन स्टार्स, मैं तुम्हें कुछ रिपोर्ट दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत फेमस रेपो थी अभी के टाइम में, कारपेथी की। सी, 15.9 के स्टार्स। स्टार्स का मतलब क्या है? मुझे अच्छी लगी ये रेपो, मैंने इसको स्टार कर ली। सॉरी, मैं ये मेरा, यहाँ मेरा लॉगिन है, एलएलएम काउंसिल। सी, कारपेथी एलएलएम काउंसिल, मुझे अच्छी लगी, मैंने स्टार कर ली, काम खत्म। इससे क्या हुआ? एक तो डेवलपर को लगा कि भाई हाँ अच्छा काम कर रहे हैं। सेकंड, जिन रिपोजिटरीज पे अच्छे स्टार्स होते हैं उनको अच्छा प्रोजेक्ट कंसिडर किया जाता है। और तीसरी बात, मैं भूलूंगा नहीं, फॉर एग्जांपल देखो, इसमें मैंने जितने भी स्टार किए हैं सब हैं, तो ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है कि जो तुम्हें अच्छे लगे प्रोजेक्ट्स, जो तुम्हें रिपोज अच्छी लगे उन्हें स्टार करो।
इट्स सपोर्ट फॉर द प्रोजेक्ट क्रिएटर एंड द मेंटेनर। अब बात करते हैं सारी ट्रिवियाज खत्म, कैसे काम करते हैं, एक किसी वेबसाइट एक रेपो पे काम कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक से बनाई। अच्छा, जितने भी लोग हैं सबने वो अपना गिटहब सेटअप कर लिया कॉन्फ़िग से, बताओ भाई, लिखो चैट बॉक्स में। तब तक मैं जितने भी लोग हैं थोड़ा एक बार देख के और मुझे कॉपी करने ट्राई करो। फर्स्ट कमांड इज git config dash dash global user dot name और डबल इन्वर्टेड कॉमा में अपना नाम। ओके, नेम कॉन्फ़िगर कर लिया। उसके बाद ईमेल, ईमेल मैं कॉन्फ़िगर नहीं करूंगा क्योंकि, अच्छा एक और मस्त बात, तुम लोग अगर कोई वैल्यू नहीं देते हो डबल ब्रैकेट में तो वो तुम्हारे क्या अभी वैल्यू कॉन्फ़िगर है उसके बारे में बताता है। ठीक, तो उसके बाद सब ईमेल अपना कॉन्फ़िगर करेंगे। ये गिटहब पे बाद में बताऊंगा ये कैसे ईमेल, अभी सब सिंपल अपना ईमेल डाल दो एक बार। देन यूजर नेम अगर डालना चाहो तो डालो, नहीं तो git config dash global core dot editor और यहाँ लिखो कोड डैश डैश वेट। जिनके पास VS कोड है उनके लिए है। इससे बेसिकली होता क्या है, जब भी तुम कुछ चेंजेस वगैरह करोगे तो तुम्हारे VS कोड में खुलेंगे इंस्टेड ऑफ विम या नैनो, जो कि एडिटर्स हैं, तुम लोगों को बहुत दिक्कत होगी उन्हें यूज करने में। सब कोई पहले इतना अपना कॉन्फ़िगरेशन कर ले, यूजर डॉट यूजर नेम भी कर लो, यूजर नेम ये याद है अपना गिटहब यूजर नेम, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, ये बाद में भी करना। सबसे पहले ये फर्स्ट गिटहब कॉन्फ़िग यूजर डॉट नेम यूजर डॉट ईमेल, ये दोनों चीजें पहले कॉन्फ़िग कर लो सब लोग। और ये कोड डॉट एडिटर वेट। ठीक, अच्छा अब से हम लोग शुरू करते हैं अपना सेशन का मेन कंटेंट। ठीक, लोकल वर्कफ्लो ये है, हम लोग क्रिएट करते हैं एक नई रेपो बनाते, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। मैंने एक पहले से बना लिया था इनएक्सेस नाम का सीडी, उसमें सीडी चेंज करके जाते हैं, फिर उसमें गिट इनिट करते हैं। देख लो मैंने PWD किया ताकि मुझे पता रहे कि मैं इनएक्सेस फोल्डर में ही हूँ, हमेशा इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद मैंने गिट इनिट किया। इनिशियलाइज से क्या होता है तुम्हारे इसमें, यहाँ पे देखो इसमें नहीं दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं ls-la करूं, चलते देखो एक डॉट गिट फोल्डर बना ना इसमें, बस यही है मेन कंटेंट जो कि सारे वर्जन्स को सेव रखता है। गॉट इट जूनियर्स? एक बार सब चैट में लिखो, अगर कुछ ना समझ में आया, अगर समझ में आया तो यस सर लिखो, अगर ना समझ में आया तो जो जो प्रॉब्लम है वो लिखो, मैं सबको क्लियर करते हुए चलूंगा। हाँ, तो हम लोगों ने गिट इनिट कर लिया, इसका मतलब एक हम लोग की डॉट गिट फोल्डर बन गई है। ठीक, उसके बाद चलते हैं, उसके बाद है क्रिएट अ हिडन डायरेक्टरी। देखो बेसिकली हिडन डायरेक्टरीज होती क्या है, जिनके नाम में डॉट रहता है वो हिडन डायरेक्टरीज रहती हैं। दिस इज नॉट ओनली अ गिटहब सेशन, इसमें तुम्हें जो भी बेसिक नॉर्मल बातें हैं वो भी मैं बताता हुआ चलूंगा, ठीक है ना। तो हाँ, हाँ, ओके, कहाँ था, तो सेटिंग मुझे नहीं याद आ रही। अब देखो अगर मैं CD करके डॉट गिट फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ पे एलएस करता हूँ, तो देखो इसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की तरह जो सेव किए हैं, जो रेफरेंसेस हैं, उसकी इंफॉर्मेशन, हुक्स, हेड मतलब किस ब्रांच में है वगैरह वैसी, देखो इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसके बारे में हम अब बात करते हैं। याद है तुम लोगों को मैंने यहाँ बताया था
जो गिटहब कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो सिर्फ डैश डैश ग्लोबल ही नहीं होती हैं, कुछ लोकल भी होती हैं। तो ग्लोबल क्या होगा, जो ग्लोबल होंगी गिट की, जो भी तुम लोग सेट करोगे, जैसे मैंने नेम को ग्लोबली सेट किया, अमर्त्य पांडे, ये ग्लोबल है। तो इसका मतलब क्या होगा, वो डॉट गिट जितनी भी तुम लोग गिट इनिट करोगे उस टाइम सब में अमर्त्य पांडे ही नेम बनेगा। लेकिन अगर मैंने गिट कॉन्फ़िग डैश ग्लोबल मैं नहीं कर रहा हूँ, यूजर डॉट यूजर नेम इन एक्सेस, ये मैंने एक यूजर नेम डाल दिया। ठीक, अब अगर मैं सिंपली देखो, मैंने पहले ही बताया था तुम लोगों को चेक करने के लिए, यहाँ पे इन एक्सेस हो गया। अगर मैं इससे बाहर निकलूं और किसी दूसरे फोल्डर में जाऊं, अगर मैं किसी दूसरे फोल्डर में जाके और देखूं, ओके मैं थोड़ा देख लेता हूँ इन दोनों चीजों को। ठीक, एलएस क्या होता है पहले ये बात करते हैं। एलएस सिंपली क्या होता है, लिस्ट, जो भी चीजें होती हैं उनकी लिस्ट बनाता है। जैसे मैं एक दूसरा फोल्डर खोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फोल्डर खोला टर्मिनल में, वैसे कोड डॉट के, ओके, देख रहे हो इतने सारे डायरेक्टरीज वगैरह सब इसमें है ना। कोड क्या लिखा है इस पे ध्यान मत दो, ये डायरेक्टरीज है। मैं अब देखो मैंने एलएस किया, config.yml, config.yml डेटा, यस, सारे फोल्डर और जितने भी हैं, config.yml फाइल, डेटा फाइल, data.py, डेटा फोल्डर, ये है एलएस कमांड। ठीक, अब इसमें जो भी हमारी लिनक्स की कमांड्स होती हैं उनमें कुछ फ्लैग्स होते हैं जो कि डैश के बाद यूज होते हैं, जैसे डैश एल या डैश ए। तो सिंपली डैश एल क्या होता है, सेम वही फाइल नाम वही रहेंगे, देखो जैसे config.yml, डेटा, data.py, इसके साथ साथ ये, उसके साथ साथ क्रिएशन के टाइम, क्रिएशन डेट, उसका ब्लॉक साइज एक मेजर होता है फाइल का साइज मेजर करने के लिए, किस यूजर ने बनाया, और ये उसके अलग अलग एक्सेस हैं, जैसे कि रीड है, राइट कर सकते हो, रीडिंग हटा सकते हो, वगैरह वगैरह चीजें। ये सिंपली है एल एस डैश एल, नहीं समझ में आया? मैं एक और चीज है, एल एस लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट, इसमें ए का मतलब ऑल, मतलब इसको इग्नोर, जैसे इसमें अभी डॉट गिट फोल्डर नहीं दिखा रहा है, अगर मैंने एलएस किया, अगर जब मैंने एलएस किया था फिर भी वो डॉट गिट फाइल नहीं दिखा रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने ए यूज किया, सिंपली ऑल, तो सब दिखाने लगे, सारे फाइल्स दिखाने लगी। यह है ए कमांड। एंड जो डैश एल कमांड है वो लॉन्ग है, लॉन्ग का मतलब एक लॉन्ग फॉर्मेट में दिखाएगा, 1 मिनट, यूज अ लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट। तो इसका पूरा एकदम अच्छे से डिस्क्रिप्शन आता है, समझ में आया? आशीष समझ में आया? जयजीत, मैं थोड़ा पेस स्लो करने का ट्राई करता हूँ। ओके, कॉन्फ़िगरेशन पे हम लोग फिर से आ जाएंगे। लेट्स कंटिन्यू विथ क्रिएशन स्टेटस एंड स्टेजिंग। यार देखो, एक मुझे मिला था, अच्छा, क्या बोलते हैं, हाँ, एक्सकेलेटर, देखो ये सिंपल सा, अच्छा, हाँ, हाँ, मैं देख लेता हूँ। हाँ,
ठीक है, देखते हैं। ओके, पीपीटी में ज्यादा कंटेंट ही नहीं रहता ना। ठीक है। ओके गाइस, एक बार यहाँ ध्यान दी, हम लोग का जो बेसिकली वर्जन कंट्रोल का आइडिया है वो यहाँ से आता है। हम लोग सिंपली सबसे पहले एक फोल्डर अपना इनिशियलाइज कर लेते हैं। फोल्डर इनिशियलाइज करने के बाद हमारी वर्किंग डायरेक्टरी बन जाती है, जो कि यहाँ वर्किंग डायरेक्टरी बन गई है हमारी। डॉट गिट फोल्डर दिखाने लगा है। अगर मैं इसे जिप करके और फिर से ओपन करूँ, ठीक है, देखो इनएक्सेस फोल्डर है, rm डैश rf डॉट गिट। मैं शुरू से समझा रहा हूँ। ये, अब देखो इसमें कोई फाइल फोल्डर नहीं है। अगर मैं ls डैश la करूँ तो इसमें कुछ नहीं है, बस एक डॉट है। डॉट का मतलब करंट डायरेक्टरी होता है, और डबल डॉट का मतलब फोल्डर डायरेक्टरी होता है। इसको अभी तुम लोग को उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जस्ट लीव इट। जो मेन बात है वो कुछ ये है कि अब मैं सबसे पहले गिट इनिट करके इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ठीक, इनिशियलाइज कैसे कर रहा हूँ? गिट इनिट इनिशियलाइज एम्प्टी गिट डायरेक्टरी इन होम, ये फोल्डर का नाम बता दिया। अब देखो, अब अगर मैं ls डैश la करूँ तो यहाँ पे डॉट गिट फोल्डर एक आ गया। इसका मतलब अब हमारा जो ये फोल्डर है, अब ये वर्जन कंट्रोल के अंडर में आ गया है। अब इसके बाद देखो, मान लो कि मैंने कुछ चेंजेस की। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रिंट डॉट py लिखा, इंडेक्स डॉट html, सिंपल। ये सिंपल html एलिमेंट यूज करके इन एक्सेस वेलकम टू इन एक्सेस 26, सिंपल। एक मैंने फाइल में चेंज कर दिया। मैंने एक एक सिंपल सी फाइल बना ली, मैंने इनिशियलाइज कर दिया। अब देखो, एक बहुत अच्छा कमांड होता है गिट के लिए, गिट स्टेटस। ये तुम्हारी करंट डायरेक्टरी का स्टेटस बताता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिलीट कर दूं, फॉर एग्जाम्पल इसे मैंने डिलीट कर दिया, अब मैं गिट स्टेटस देखूं, मेन ब्रांच अभी तक एक भी कमिट नहीं है और नथिंग टू कमिट है, मतलब मैंने कुछ ऐसा नया बनाया भी नहीं है। मैं सिंपली फिर से इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बनाऊं और यहाँ पेस्ट कर दूं, ठीक। और फिर मैं गिट स्टेटस देखो, देखो यहाँ गिट स्टेटस, मैं फिर से गिट, तो क्या बता रहा है? ब्रांच मेन है, अभी तक कोई कमिट नहीं हुआ, लेकिन अभी जो कुछ फाइल्स हैं वो अनट्रैक्ड हैं। ठीक, फाइल्स अभी ट्रैक नहीं हुई हैं, जो कि हमारा ये वाला पार्ट है। ठीक, अगर फाइल्स ट्रैक नहीं हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि अगर फाइल्स ट्रैक नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे जो चेंजेस हैं वो गिट नहीं कैच कर रहा है। अब देखो सिंपली मैंने क्या किया, गिट ऐड और नाम लिख दिया इसका इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। अब ये यहाँ यू बना था, यहाँ ए बन गया, समझ में आया? और अगर मैं गिट स्टेटस करूं तो अब ये चेंजेस टू बी कमिटेड है। अगर इसके अकॉर्डिंग जाओ तो मैंने इनिशियलाइज कर दिया है, एक वर्किंग डायरेक्टरी बन गई मेरी। फिर मैंने गिट ऐड किया तो स्टेजिंग एरिया में आ गया। जार्गन्स है, इनकी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें समझने की, जैसे जैसे यूज करो वैसे वैसे समझ जाओगे। ठीक, उसके बाद मुझे अब कमिट करना है, ये तुम लोग याद रखना। गिट इनिट करो, गिट ऐड करो, गिट कमिट करो, फिर गिट ऐड करो, गिट कमिट करो, ऐड करो, कमिट करो, जितने कमिट्स करने हैं उतने करते जाओ। ठीक, मान लो कि मैंने गिट कमिट किया, गिट कमिट इंटर नाम, यहाँ पे देखो, या तो यहाँ कमिट मैसेज, अगर तुम लोगों ने वो जो मैंने सेटिंग बताई थी, सेट कोड डॉट एडिटर कोड, उसे क्या होगा तो आ जाएगी। अगर नहीं आ रही है तो उसके लिए तरीका ये है, ये अबाउट हो गया, गिट कमिट डैश एम मैसेज, और इसमें मैसेज लिखते हैं, जैसे इनिशियल कमिट, ये मैंने मैसेज लिख लिया, अब मेरा कमिटेड हो गया।
अब मैं जो भी चेंजेस करूं इसमें, मैं फिर से वापस जा सकता हूँ उन पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, मैं कुछ भी ऐसे रैंडमली यूज कर लिया, मैंने कुछ भी रैंडमली लिख दिया, मैंने कुछ भी लॉरेम वाला पार्ट जो भी हम लोग लिखते थे वो लिख दिया। अब मेरे किसी जूनियर ने, फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, मेरे किसी कलीग ने गलती से मेरे कोड में चेंजेस ला दिया, मैं कैसे वापस जाऊंगा? अगर मैं, अगर उसने सेव कर दिया होगा, अगर वो ऐसे इसको बंद कर दिया हो फिर इसे खुला हो, और अगर मैं कंट्रोल जेड करूँ तो यहाँ पे ये काम कर जाएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से इसे दूसरी बार खोलूं तो ये सेव नहीं होते हैं चेंजेस, या फिर हमेशा तुम वीएस कोड पे नहीं काम करते हो। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसको सॉल्व करने के लिए वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स आए। अब मैं मैजिक दिखाता हूँ। मैजिक क्या है? ये सिंपल सी बात है, गेट लॉग। इसने मेरा लॉग रख रखा है कि एक कमिट हुआ अमर्त्य पांडे से इस ईमेल से, और इसका डेट ये था। तुम लोग इतना मत सोचना, तुम लोग यहाँ ध्यान दो, गेट रिसेट, गेट रिसेट, और इसे कॉपी करके मैंने इसे यहाँ पेस्ट कर दिया। अनस्टेट चेंजेस आ रहे हैं। यार ये मत करना, मैं बस अभी समझाने के लिए तुम लोग को दिखा रहा हूँ। देख रहे हो? फिर वापस मेरे सिर्फ इसको प्रोग्राम को रन करने से ये था वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स का बेसिक, और इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। एनी प्रॉब्लम गाइस? कमिट, कुछ डाउट है? ओके, और कोई भी डाउट हो? जयजीत, अब कुछ स्पीड स्लो हुआ है, या और मैं मेंटेन करूं स्पीड को? जस्ट रिप्लाई। ठीक है, फिर चलते हैं। तो मैंने एक कमिट कर लिया है इसका। अगर मैं लॉग, लॉग, गिट लॉग, तो एक कमिट मैंने कर लिया। अब कमिट का फायदा क्या है भाई? तो अब देखो कमिट, हमने क्रिएट कर लिया, हमने स्टेटस देख लिया, और हमने इसकी स्टेजिंग कर ली। देखो मैंने रीडमी नहीं बनाई है, मैंने एक सिंपल सा वेबसाइट का एक बना के दिखा दिया है, ताकि इसे जब हम लोग डिप्लॉय करें तो ही तुम लोग देख सकते। देखो मैं गो लाइव जा रहा हूँ यहाँ से। देखो वेलकम टू नेक्सस 26 आया। अब चलते हैं आगे। स्टेज फाइल रेडी, ये सब जार्गन था। इस वक्त कमिट मैंने बता दिया, डिफरेंस वगैरह बाद में बताऊंगा। अच्छा, यार मेरे में अपडेट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। Priyanshu sir, what the need of adding before commit? I mean, if we were meant to commit, we committed. हाँ, ये एक बहुत मस्त, अच्छी, बहुत अच्छी चीज है। देखो तुम दो प्रोजेक्ट, दो फाइल्स पे एक साथ काम कर रहे हो, एक स्टाइल डॉट सीएसएस भी है। ठीक, लिंक कर लो भाई आराम से, इतना तो तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा। लिंक नहीं है क्या? कैसे भाई? इसमें आई थिंक ये था, और हाइपर एक्सटेंशन कर दी मैंने, और वही स्टाइल डॉट सीएसएस, और इसे क्लोज करके सिंपल। और अब इसमें मैंने लिखा H1
ब्रदर इसको हाँ, अरे यार गलत कलर मन लगा दिया। ये ब्लू वॉलेट, ठीक, यहाँ ब्लू वॉलेट आ गया, सिंपल लिंक्स करें। अब देखो यहाँ पे अभी क्या हुआ, मैंने अब यहाँ पे गिट लॉग पे जाके देखो, बहुत सॉरी गिट स्टेटस, जो कुछ ना समझ में गिट स्टेटस देखो, देखो यहाँ पे एक चेंज स्टेज के लिए कमिट के लिए स्टेज नहीं की गई जो कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, और एक ऐड नहीं की गई। मुझे अभी कमिट नहीं करना है, मेरा गोल है कि मैं जब तक इसे अंडरलाइन करूं, मेरा दो गोल है, मुझे कलर चेंज करना है और इसका जो स्टाइल है मुझे अंडरलाइन करना है, ठीक। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने अभी सिर्फ गिट ऐड किया, गिट ऐड, और सिर्फ मान लो कि मैंने इंडेक्स भी कर दिए, स्टाइल भी कर दिया, ठीक। अभी मैंने कमिट नहीं किया है इसको, आई एम गुड टू गो, मैं और चेंजेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने ये H1 टैग हटा के और ये H2 टैग लगा दिया, यहाँ पे H1 टैग हटा के H2 टैग लगा दिया, ठीक। ये फिर से वो चेंज आ गया। हाँ, चूंकि यहाँ पे H1 टैग को टारगेट कर रहा था, यहाँ पे मैंने टैग चेंज कर दिया तो उसका कलर बाई डिफॉल्ट फिर वापस वही हो गया। अभी मैंने चेंजेस जो इसमें चेंजेस किए हैं उसको देखो, यहाँ पे कलर आ रहा है, ये जो है वो ऐड की गई लाइन्स है, ये ऐड की गई लाइन्स नहीं है। प्रियांशु, जो तुमने ये पूछा कि ऐड करने की जरूरत क्या है, ऐड करने की जरूरत ये है कि मैंने सुबह में अपना लैपटॉप ओपन किया किसी कंपनी में, और मुझे शाम को एक एक कोई फीचर कंप्लीट करना है। हम लोग बार बार कमिट्स नहीं करते हैं, हम लोग बार बार बस उस फाइल को ऐड करते जाते हैं। इससे ये होता है कि एक तो कमिट्स बहुत प्रीसियस चीजें हैं, हम कमिट तभी करते हैं जब हमारे पास कुछ रीजनेबल कोड आ जाए। अब मैं वेलकम टू इनएक्सेस को डायरेक्टली कमिट नहीं करता, अगर मैं किसी कॉर्पोरेट में काम करता तो मैं इंडेक्स बनाता, मैं स्टाइल बनाता, एटलीस्ट मैं एक स्क्रिप्ट डॉट जेएस भी ऐड करता, जेएस भी ऐड करता। मैं अगर रिएक्ट करना होगा, मैं सिंपली इस पे समझा रहा हूँ, रिएक्ट छोड़ो, मैं स्क्रिप्ट डॉट जेएस भी ऐड करता, मैं इसमें जो भी कुछ लिखना होगा वो लिखता। और जैसे मैंने स्क्रिप्ट डॉट जेएस में सिंपली मैंने कमेंट डाल दिए, मैंने फिर इसको गिट ऐड कर दिया, सॉरी गिट ऐड भूल गया मैं, गिट ऐड स्क्रिप्ट डॉट जेएस। अब मेरे जो चेंजेस हैं वो सेव्ड हैं लेकिन अभी कमिटेड नहीं है, इसका मतलब मैं उन पे वापस नहीं जा सकता हूँ। ऐसे नहीं समझ में आया, मैं ऐसे समझा रहा हूँ जी। ये वाला जो पार्ट है इस पे ध्यान दो जी, इसको ही छोड़ो, ये जो स्टेजिंग एरिया है, तुम्हारे पास बार बार तुम गिट ऐड करते जा रहे हो, बार बार गिट ऐड करते जा रहे हो, जब भी तुम कुछ नए चेंजेस कर रहे हो, जब भी तुम्हें कुछ चेंजेस सेव करने हैं। अब मान लो कि मैंने अभी इसे कमिट नहीं किया है, ठीक है ना, ऐड की वैल्यू यहाँ पे है और मेरा कोड डिलीट हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये सारे एडेड हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ, गिट स्टेटस, ये चेंजेस नॉट मैं गिट ऐड डॉट डॉट मतलब ऑल जितने भी हैं वो सब ऐड हो गए। अब देखो गिट स्टेटस, ये सिर्फ कमिट करने बाकी हैं, अभी ऐड नहीं हुए हैं। और मेरे भाई को नहीं पता था, उसने खेलते खेलते डिलीट कर दिया। क्योंकि कमिट्स प्रीसियस हैं इसलिए हम लोग बार बार कमिट्स नहीं कर सकते, लेकिन हमारे फाइल चूंकि प्रीसियस है इसलिए हम उसे स्टेजिंग एरिया में रखते हैं। तो अभी भी तुम्हारा ये गया नहीं है गिट स्टेटस, ठीक, चेंजेस टू बी कमिटेड, चेंजेस नॉट स्टेज टू बी कमिटेड। मैं क्या करूंगा यार, चुपचाप इसको कमिट मारो, ये एक तुम्हें अप्रोच बता रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ बचा लो, ठीक।
अब देखो गिट लॉग गया और मैंने फिर इस पे रिवर्ट मार दिया जैसे मैंने उसको मारा था, गिट रिसेट डैश डैश हार्ड और एंटर, ठीक है ना। चालू नहीं है क्या? आई थिंक मैंने कुछ गलत कर दिया था। थ्री फाइल सीन्स वन डिलीशन क्रिएटेड, अरे सॉरी मैंने गलत वो कर दिया, इसको कॉपी करूं, गिट रिसेट डैश डैश। अब देखो यहाँ पे मैंने इस बार 4ED वाला डाला है जो कि पहला कमेंट था, लेकिन मुझे बचा लो यूज करना है जो कि E6 से है। मैंने इसे किया, एंटर किया और लो मेरा पुराना वाला आ गया। तो ऐड करते जाना तो उसका सेव होते जा रहा है, वर्जन वर्जन नहीं सेव हो रहा, फाइल सेव होती जा रही हैं। और जब मेरे पास कुछ रीजनेबल आर्किटेक्चर, रीजनेबल सॉफ्टवेयर, रीजनेबल कोड होगा कि हाँ भाई मैंने एक फीचर इंप्लीमेंट कर लिया, जैसे मैंने इसमें क्या फीचर इंप्लीमेंट किया है, ये मुझे चेंज करना चाहिए था, मुझे जैसे बचा लो नहीं करना चाहिए था, फॉर एग्जांपल ऐड फीचर्स ये सब होते हैं। तो मैंने एक बार उसको कमिट मार दिया कि चलो ठीक है, मेरे पास मैंने एक बटन ऐड किया और उसके बाद मैंने मार दिया उसको कमिट की, चलो एक बटन ऐड किया, आज के लिए बस इतना ही काम है। अब समझ में आया गिट कमिट का अगर गिट कमिट है तो गिट ऐड का यूज क्यों करते हैं? तुम्हारे फाइल्स को सेव करता है। गिट कमिट क्या करता है, तुम्हारे एक वर्जन को सेव करता है। वर्जन मतलब तुम्हारा एक पूरी डायरेक्टरी, फाइल का मतलब वो स्पेसिफिक डायरेक्टरी पे क्या हो रहा है। पहली बात गिट इतनी भी आसान चीज नहीं है, खुद से जाके पहले प्रैक्टिस करो तुम लोग, तब आएगा। बाकी कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लो। हाँ, गिट इग्नोर के बारे में बात करेंगे, रिमोट सिंक्रोनाइजेशन वर्कफ्लो के बारे में बात करते हैं। तुम सब चीजें जो है वो नहीं चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल सब जानते हैं जब कोई भी हम लोग इनिशियलाइज करते हैं तो उस टाइम कितनी बड़ी बड़ी नोड मॉड्यूल्स बनती हैं, या फिर जो भी तुम्हारे कचरे वाले फोल्डर हैं, या फिर ये छोड़ना यार मैं बताता हूँ, .env फाइल्स। अच्छा, .env कौन कौन जानता है, बस यस सर बोल दो, थोड़ा देखो यार। देखो कौन, मेरे में बार बार स्लाइड करना पड़ रहा है। हम्म, सही बात है। बहुत बढ़िया जयजीत। वेल डन गाइस। .env जिसने मेरा एक और सेशन दिया होगा, मैंने बताया था कि कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं। मैं इसमें सिंपली अपना, अब मुझे दुनिया को नहीं बताना है भाई मेरा नाम अमर्त्य पांडे है, तो मैंने इसमें कोडर नेम, भाई स्टेट सीक्रेट है मेरा नाम, तो इसको इसको अमर्त्य पांडे, ठीक। अब मुझे इसे पुश नहीं करना, मुझे बस यहीं तक रखना है, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, बार बार भाई, और जब तुम बड़े चेंजेस करते हो तो तुम सिंपली गिट ऐड डॉट करते हो, ठीक, ताकि सब सेव हो जाए। अब देखो ये सेव हो गया, ये यहाँ पे लिख के आ गया ना। अब मैं गिट स्टेटस भी करूं तो देखो चेंजेस टू बी कमिटेड। हाँ ये देखो एक बहुत मस्त चीज, अगर उसको अनस्टेज करना है, अनस्टेज मतलब मैंने गिट ऐड डॉट कर लिया तो उसको स्टेजिंग बोलते हैं। और मुझे अगर उसको अनस्टेज करना है तो मैं सिंपली ये यूज करूंगा, .env लिखूंगा और वो ए से फिर से यू हो गया। देखो फिर से मैं दिखा रहा हूँ, अगर मैंने गिट ऐड .env किया सिंपली, तो यहाँ देखो जहाँ मेरा माउस का पॉइंटर है अभी तक यू मतलब अनट्रैक्ड है, ये एडेड है, ठीक। अगर मैंने इसको फिर से रिस्टोर कर दिया जैसा कि यहाँ पे बताया गया था, तो फिर से अनट्रैक्ट हो गया। तो भाई जब हाँ, तो जब मुझे कुछ इग्नोर करना होगा तो मैं यहाँ पे गेट इग्नोर बनाऊंगा एक फाइल, इसका नाम ही है डॉट गेट इग्नोर। डॉट गेट इग्नोर इसका वो नहीं है। अब इसमें मुझे जो भी चीज ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल .env मुझे ऐड करनी है, मुझे नोड मॉड्यूल्स ऐड करने हैं,
जो लोग भी वाइब कोडिंग करते होंगे या फिर जिन लोगों ने बिना वाइब कोडिंग किए भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, बेसिकली यार सिंपली रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स, उसमें नोड मॉड्यूल्स बहुत हैवी होते हैं। ठीक, या फिर जो लोग एमएल मॉडल्स ट्रेन करने का ट्राई किए होंगे, एमएल मॉडल्स कोई नहीं अपने गिटहब पे अपलोड करता है क्योंकि वो जीबीज में होते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, डॉट गिट इग्नोर में अगर मैं ये डॉट नोड मॉड्यूल्स लिखूंगा, और फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ नोड मॉड्यूल फोल्डर बनाया, नोड मॉड्यूल्स, ठीक, और इसमें एक फाइल बनाई ए एस बनाई, एस में कुछ भी लिख दिया, दिख रहा है ना। और यहाँ पर अगर मैं काट दूं बस, ये अभी कुछ नहीं होगा। ठीक, बात ये नहीं है, बात ये है, अच्छा रुको मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। मैंने गिट ऐड किया, डॉट गिट इग्नोर, सिंपली। तो इसमें जो जो चीजें हैं, डॉट एनवी डॉट नोड मॉड्यूल, देख रहे हो इसमें चेंजेस तो हो रहे हैं, लेकिन इसकी तरह यू ए ये सब नहीं लिखा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसमें मैंने लिखा, इसमें मैंने दो चीज लिख दिया, ठीक, अब मैं यहाँ से हट गया तो यहाँ पे एम लिख दिया ना, एम मतलब मॉडिफाइड। लेकिन वही मैं डॉट एनवी में कुछ भी यार लिखूं, उसमें उसको ये बता ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने डॉट एनवी यहाँ पे डाल दिया। सेम गोज फॉर नोड मॉड्यूल्स। एक बात ध्यान रखना, सिंपल कन्वेंशन में फोल्डर के नाम के बाद स्लैश डालते हैं। डाउट आ रहा है जूनियर्स? बहुत हो गया, बहुत मस्त था। चलो, ये मैं पढ़ दे रहा हूँ, सिंपल सी बातें हैं जो मैंने बताई थी। डेवलपर्स एक्सक्लूड स्पेसिफिक फाइल्स, एक्सक्लूड, जो जो चीजें तुम डॉट गिट इग्नोर में डालोगे वो सब एक्सक्लूड हो जाएंगी। मस्ट नेवर कमिट फाइल्स कंटेनिंग डेटाबेस क्रेडेंशियल्स, सिंपल एनवायरमेंट फाइल्स। यू मस्ट इग्नोर ऑटोमेटिकली जनरेटेड फाइल्स लाइक नोड मॉड्यूल्स वेंडर स्लैश स्लैश स्लैश, जो मैंने बताया। क्रिएट अ फाइल इन योर प्रोजेक्ट। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जिस फाइल में, अब मुझे एलएस फिर से करने दो, एलएस से नहीं हुआ, एलएस डैश एलएस होगा। जिस फोल्डर में डॉट गिट होगा उसी फोल्डर में डॉट गिट इग्नोर होगा, और उसी फोल्डर के सारे फाइल्स ट्रैक होंगे। इसके बाहर के इनएक्सेस के अंदर है डॉट गिट, तो इनएक्सेस जो है वो ट्रैक होगा पूरा, इनएक्सेस के बाहर का कुछ ट्रैक नहीं होगा। टाइप कॉन्फ़िग इनसाइड टू इग्नोर, ये मैंने दिखाया था। स्पेसिफिक डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस, नोड मॉड्यूल्स टू इंटायर डायरेक्टरी इग्नोर करने के लिए, डेटा फॉलोड बाय डेटा रीडमी टू इग्नोर अ डायरेक्टरी बट कीप वन स्पेसिफिक फाइल। हाँ, ये मैं दिखा दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने नोड मॉड्यूल्स में एक ये बनाया एस, और मैंने नोड मॉड्यूल में एक एस डबल एस बना लिया या फिर डी बना लिया, ठीक, और डी में भी मैंने कुछ लिख दिया। अब देखो, जब तक नोड मॉड्यूल्स क्या लिखा है इसमें तब तक ट्रैक नहीं होगा, नोड मॉड्यूल्स का कोई भी फाइल ट्रैक नहीं होगा। लेकिन जैसे मैंने ये नॉट का साइन, सब जानते हैं भाई ये नॉट है, नॉट नोड मॉड्यूल्स स्लैश डी, अब देखो। हाँ, कुछ नाम देता, डॉट टी एच। ये सिंपल सा, सिंपली ऐसे करो तो समझ में आता है। तो ये उसके बाद ये ट्रैक होने लगता है। यही बात है, डाटा फॉलोड बाई डाटा स्लैश फॉलोड बाई टू इग्नोर डायरेक्टरी बट कीप वन स्पेसिफिक फाइल। ठीक, उसके बाद गिट इग्नोर डॉट आईओ वेबसाइट, हाँ तो जनरेट फ्रेमवर्क, ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसका यूज ज्यादातर लोग करते हैं। इंस्टेड ऑफ तुम एआई से जनरेट कराओ डॉट गिट इग्नोर, तुम जाओ गिट डॉट गिट इग्नोर डॉट आईओ पे, ये कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, ठीक। और तुम यहाँ पे कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम आईडी या फिर फॉर एग्जांपल मैंने पाइथन लिखा, ठीक, तो इसके पास पाइथन के ऑलरेडी फाइल्स हैं जो कि देखो जनरेट हो गया ना, पाइथन में डॉट पाइथन फाइल्स बिल्ड फाइल्स सिंपली, उसके बाद वही पिपलॉक, ये सब
ऑटोमेटिकली बन जाती है, जो कि रिकमेंडेड होती हैं डिलीट करनी, तो वो बना देता है। मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि सीधे मत जाओ, सीधे एआई से मत लिखो डॉट गेट इग्नोर डॉट आईओ पे जाओ, और जीएल लारावेल वाला कमांड टू ऑटोमेटिकली जनरेट लारावेल वाला, जो भी लारावेल यूज करता है ये उसके लिए, तुम लोगों के लिए भी उतनी खास नहीं है। हाँ, अब बात करते हैं गिटहब के। गिटहब के बारे में यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बताया था, आई थिंक ये वाला कोई पेज, मैंने गिटहब के बारे में बताया था, देखो यहाँ पे मैंने बताया था। अच्छा, कमेंट में सब बताओ तो कि गिटहब क्या है, और या फिर ये मत बताओ, तुम ये बताओ गिट एंड गिटहब में डिफरेंस क्या है। इट इज वर्जन कंट्रोल एंड गिटहब इस प्लेटफॉर्म वैल्यू बहुत बढ़िया। और कोई? यार एक ने आंसर दे दिया सही है, मतलब नहीं है कि बाकी सब आंसर ही नहीं देंगे। गिट मीन्स लाइक कमांड, गिटहब इज प्लेटफॉर्म। गिट इज नॉट अ कमांड, गिट इज अ सॉफ्टवेयर। और सबसे मस्त बात है कि सिर्फ गिटहब ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, गिटलैब भी है, बिट बकेट है, वगैरह वगैरह चीजें हैं। और गिट भी अकेले नहीं है, उसके जैसे भी मरकरी वगैरह हैं। ये सिर्फ ट्रिवियाज हैं, इसके अभी तुम लोगों को कोई काम नहीं है। आशीष कुमार, गिटहब इज प्लेटफॉर्म एंड गिट इज सॉफ्टवेयर। हाँ, कह सकते हैं। अब हम लोग आ रहे हैं गिटहब की तरफ। ये क्या कर दिया मैंने, कटो कटो। हाँ, चलो बात करते हैं हम गिटहब की। लिंक करनी पड़ती है, हाँ भाई लिंक कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, मेन बात सुनो, ये एक ही साथ रख लो। लिंक करते हैं, अगर तुम्हें पुश करना है तुम्हें लिंक करनी पड़ेगी अपनी डायरेक्टरी। उसके बाद ये कमांड यूज होते हैं, इसका कोई काम नहीं है, ये मैं अभी सिखाऊंगा तुम लोगों को। टीममेट चेंजेस द कोड बेस फ्रिक्वेंटली, इसलिए गिट पुल करना पड़ता है, ये बहुत बड़ी बात है। यू मस्ट पुल रिमोट चेंजेस बिफोर द पुश लोकल चेंजेस, गिट रिजेक्ट पुशेस रिमोट वगैरह वगैरह चीजें। हो गया। अब चलते हैं हम लोग सिंपली गिटहब पे, और एक अपनी नई रेपो बनाते हैं, और उसे हम लोग आज होस्ट भी करेंगे। मैं गया एक सिंपल न्यू इन एक्सेस, ठीक, डिस्क्रिप्शन, जस्ट वो इन समथिंग, मैं कुछ भी डाल रहा हूँ। यहाँ पे अगर तुमने रीडमी ऑन कर दिया है तो ऑन कर दिया है, नहीं किया तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, क्रिएट जब तुम रिपोजिटरी करोगे रीडमी को ऑफ करके, तब तुम्हारे पास ये दो ऑप्शंस आएंगे। अगर नया रेपो बनाना है कमांड लाइन से तो इसको कॉपी करो, अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो इससे कॉपी करो। यहाँ पे एसएसएच और एचटीटीपी, जिन लोगों ने अभी एसएच की नहीं ऐड की है वो लोग यहाँ एचटीटीपी में चेंज कर लेना, ठीक। जैसे मैंने एचटीटीपी में चेंज कर लिया, अब मैं इससे समझा रहा हूँ। मैं जाऊंगा, चूंकि मेरे पास डॉट गिट फोल्डर ऑलरेडी है, ठीक है, चलो ठीक है, समझ गए। सॉरी मैडम, ये थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको हटा देती हूँ। नोड मॉड्यूल्स फोल्डर को भी हटा देते, इग्नोर मारो, ठीक, काम खत्म। हाँ, हमारे पास डॉट टेन भी हमारा इग्नोर हो रहा है, और ये इग्नोर हो रहा है, और हमारे पास 3 फाइल्स हैं। एक और बात ध्यान देना, जो एम्प्टी फाइल्स हैं वो ऑटोमेटिकली इग्नोर होती हैं। मैं क्लियर कर रहा हूँ, एक बार मैं गिट स्टेटस चेक कर लूँ, कोई भी काम करने से पहले एक बार गिट स्टेटस चेक कर लो। देखो, चेंज चेंजेस हुए, मतलब मैंने गिट ऐड किया है लेकिन अभी गिट कमिट नहीं किया है। और नॉट स्टेज फॉर कमिट का मतलब मैंने चेंजेस किए हैं लेकिन गिट ऐड ही नहीं किया है, तो वो लाल में आता है, और जो गिट ऐड करने के बाद पार्ट रहता है वो हरे रंग में आता है। मैं सिंपली गिट ऐड डॉट करूंगा, डॉट मतलब इस फोल्डर में सब कुछ, डॉट जो है वो उस फोल्डर को कोई क्वेश्चन, गाइस कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, तुम लोग चैट में लिख देना, हम लोग
मॉनिटर कर रहे हैं। मैंने सबको गिट ऐड कर लिया। अब मैं फिर से गिट स्टेटस चेक करूंगा। गिट स्टेटस फालतू का चेक करते रहो यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पैसा उसमें नहीं लगता है। देखो गिट, फिर मैंने गिट कमिट किया। मैं प्रिफर करता हूँ डैश एम टैग, लेकिन तुम लोग जैसा चाहो। यहाँ पे सिर्फ गिट कमिट तुम लोगों ने कर दिया और ये आ गया। फिर यहाँ पे समथिंग, बस सिंपल। और इसको डैश डैश वेट का ये मतलब था कि जब तक मैं इसे काटू नहीं तब तक वो होगा नहीं। जो हम लोगों ने वो कॉन्फ़िगरेशन सेट की थी, गिट लॉग नहीं हुआ, गिट कमिट डूइंग इट, और मैंने इसे बंद कर दिया। अरे कुछ तो मेरा प्रॉब्लम आई, आई थिंक। जो भी इस पे बाद में देखेंगे, अभी पहले आगे चलते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे देखो अभी मेरे में प्रॉब्लम आ गई, तो सिंपली डैश एम फ्लैग का यूज करो। डैश एम मतलब मैसेज। ये डैश के बाद जो भी होते हैं वो कमांड के फ्लैग्स होते हैं, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, डूइंग समथिंग। एंड हमने कमिट कर दिया। अब मैंने अगर गिट स्टेटस देखूं, ऑन ब्रांच में नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन वगैरह वगैरह चीजें। ठीक। अब देखो, अगर तुम लोग मेरे साथ चले हो, तुम लोग इसको सिंपली देखो, HTTP कर लेना, पहले बोल रहा हूँ। अगर जिन लोगों ने SH की नहीं ऐड की हो, SH की के बारे में अब इसके बाद बात करेंगे। इसे सिंपली करो, इसे पेश करो। अच्छा, हम लोग एक ही साथ नहीं पेश करेंगे, हम लोग लाइन बाय लाइन पेश करेंगे और ये देखेंगे कि होता क्या है इन सब चीजों से। ठीक। कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, HTTPS वगैरह वगैरह चीजें। देखो बेसिकली तुम्हारे पास दो डिब्बे हैं। एक ये जो कि है तुम्हारा लोकल, और जो तुम्हारे पास दूसरा डब्बा है ये है तुम्हारा गिटहब। गिटहब फोल्डर, मैं फोल्डर यूज कर रहा हूँ। जिसका टेक्निकल टर्म होता है वो रेपो बोलते हैं हम लोग, रेपोजिटरी होता है, तो मैं इसको रेपो बोलता हूँ सिंपल। जहां भी तुम आज के बाद बात करो गिटहब रेपो की बात होगी। ठीक, ये दो अलग अलग डब्बे हैं या फिर दो घर हैं। हम इन्हें कैसे कनेक्ट करेंगे, हम लोग कुछ ना कुछ इनके लिए रास्ता बनाना पड़ेगा। तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, गिट रिमोट, रिमोट स्पेसिफाई करते हैं हम लोग। तो गिट रिमोट ये बता रहा है कि कुछ रिमोट के रिलेटेड कमांड है। अब क्या कमांड है कि ऐड करो ओरिजिन। सिंपली हम लोग ये टर्म यूज करते हैं, कन्वेंशन है ऐड ओरिजिन। ओरिजिन नाम का एक घर ऐड करो, मतलब एक रास्ता है मेरा जो कि ओरिजिन तक जा रहा, ओरिजिन नाम के घर तक जा रहा है। मुझे नहीं पता उसका क्या नाम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा घर है, तो मान लो कि कोई एक लड़का है मनीष, तो ये मनीष का घर है ना, मनीष का घर। लेकिन टेक्निकली ये मनीष का घर नहीं है, ये तो फॉर एग्जाम्पल हाँ हाँ, ठीक, ये मनीष का घर है। लेकिन भाई देखो, तुम्हारे दोस्त जानते हैं कि ये मनीष का घर है, सरकार को नहीं पता है कि ये मनीष का घर है। तो उसके लिए हम लोग पिन कोड यूज करते हैं, या फिर मान लो कि मैं जिस हॉस्टल में बैठा हूँ, तो मनीष का घर कौन सा है, रमन भवन, MUT गोरखपुर। तो अगर मुझे किसी को बताना होगी भाई तुम मनीष के घर जाओ, तो मैं क्या बताऊंगा कि मनीष का जो घर है वो रमन भवन MUT गोरखपुर में है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि जो ओरिजिन है ये मेरे दोस्त का नाम है, और उसका जो एड्रेस है ये है। ये हो गया, अब मेरा रिमोट ऐड हो गया। अब अगर मैं सिर्फ गिट रिमोट डैश वी करूं तो ये बता देगा। फेच मतलब उधर से खींचना। अब देखो वन में तो होगा नहीं,
सेव अगर मैं कर रहा हूँ कहीं भी, तो मैं उसको फिर रिट्रीव करने के लिए सेव कर रहा हूँ। तो लोकल से गिटहब रेपो पे डालना पुश बोला जाता है, और रेपो से लोकल पे खींचने को फेच बोला जाता है। फेच एंड पुल इंटरचेंजेबली यूज होते हैं टर्म्स, लेकिन ये सेम है नहीं। लेकिन तुम बस ये सोच लो कि पुश का मतलब यहाँ से किसी को धक्के मार के घर के बाहर निकालना, तो इसलिए वो घर से जा रहा है दूसरे घर। फेच मतलब किसी को खींचना, तो तुम्हारे पास आ रहा है। पहले लाइन हो गया। दूसरा लाइन देखते हैं। अब ये देखो, ये मैं ब्रांच बता रहा हूँ, गिट ब्रांचेस के चक्कर में नहीं पड़ना है। सर तो क्या हम ओरिजिन कलर कुछ भी, और भाई तुम्हारा मन क्या नाम है? जयजीत, हाँ। देखो मैंने इसलिए तो तुम्हारे दोस्त का नाम लिया कि अगर ये मनीष का घर है, मुझे नहीं डालना है मनीष का घर है। मैं बोलूंगा कि भाई देखो, जो मनीष है उसके घर का नाम बिट्टू है, तो मैं इसे बोलूंगा बिट्टू का घर। बिट्टू का घर हो गया, ये बिट्टू का घर। वैसे सिंपली ये ओरिजिन है। ये जजीत, जो नाम हम लोग तुम बोल रहे हो कि दूसरा डाल सकते हैं, ये तब यूज होता है जब तुम्हें एक साथ कई रिमोट रेपोज को मॉनिटर करना हो, तब तुम बार बार ऐड करते हो, चेंज करते हो। वो अभी हमारे स्कोप में नहीं है, लेकिन हाँ तुम यूज कर सकते हो, स्कोप है बहुत। तो हम लोगों ने ऐड कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे गेट ब्रांच डैश एम मेन। ये बस ब्रांच सेट कर देगा। मतलब क्या है, जैसे देखो अभी मैं गेट स्टेटस करूं, देखो ऑन ब्रांच मेन, बस अभी तक ये नहीं बताया कि किस। फॉर एग्जांपल मैंने गेट ब्रांच नया बनाया, दिखाओ एचटीएफ। अब अगर मैं देखो गेट स्टेटस करूं, मतलब अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ, डैश एम का मतलब और ब्रांचेस का मतलब। एक मैं मेरे घर का रास्ता है, ये मेरे घर का मेन रास्ता है। मेरे घर में कुछ किराएदार आए, उन्होंने ब्रांच बना लिया, ठीक। और अगर तुम्हारे दोस्त के घर पे भी कुछ किराएदार रह रहे हैं, तो तुम ये तो नहीं ना बताओगे कि उस बिट्टू का पूरा घर में वही रहता है, जो भी मिले वो उसी के परिवार का है, नहीं। तो तुम क्या बताओगे, जो उसके मेन ब्रांच पे लोग हैं वो उसके परिवार के हैं। डैश एम ब्रांच जो है वो यही बता रहा है कि जो मेन ब्रांच है उसको तुम्हें ट्रैक करना है। ये मैंने सेट कर दिया। अब देखो, अब अगर मैं गिट स्टेटस करूं, तो वो अलग आएगा। अब फिर अब मैं पुश कर दूंगा, सिंपली पुश कर दूंगा। यार ये तुम्हारे, ठीक। मैंने पुश किया। अब देखो एक बार मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ, अभी तक इस पे नहीं आया है, ठीक। जैसे ही मैंने इसको मारा पुश, अलाउ कर दूं, ठीक है। टाइम तो मैं दे रखा हूँ। ये पुश हो गया। अब अगर मैं इसे रिफ्रेश मारूं, तो देखो आ गया है, एज सिंपल एज दैट। ये हो गया पुश का। अब मान लो, अब एक तुम्हें बहुत मस्त मैं कंडीशन बता रहा हूँ, जो यहाँ पे लिखी हुई है। Git reject pushes if commit contains newer commits, pulling updates your local files and prevent code conflicts। मान लो कि तुम इसी के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हो, क्या टाइम है 49। और तुम्हें पता चला कि भाई ये देखो ना, इस इनएक्सेस में जो मैंने लिखा है, तुम यहाँ भी एडिट कर सकते हो। देखो जैसे मैंने यहाँ पे एडिट मार दिया, एडिट कर दिया। अरे ये देखो, ये बी ज्यादा हो गए थे, बी ज्यादा हो गया था ना, मैंने इन बी को काट दिया, चेंजेस कमिट कर दिया। नो नीड टू थिंक, ये थिंक कर रहा था इसलिए बस मैंने डाल दिया, तो सेव कर दिया, ठीक। यहाँ पे अभी भी इन एक्सेस 26 के बाद कुछ नहीं लिखा है, मतलब मैंने जो चेंज कर दिया है, लेकिन यहाँ पे लिखा है। तो अभी मैंने क्या किया, गेट पुश किया, गेट पुश किया। अब मैं गेट फेच करूंगा। गेट फेच, गेट फेच मत किया करो तुम लोग, ये तुम लोग सिंपली गेट पुल कर लिया करो। बात ये है कि दोनों में स्टेजिंग का अंतर है। वो इस इवेंट के लिए नहीं जरूरी है। जब तुम लोग एक कई बार पुश एंड पुल यूज कर लोगे, फिर तुम्हें फेच यूज करना आ जाए। मैंने गेट पुल किया, अब देखो क्या है मैजिक। मेन मैजिक यहाँ नहीं है, मेन मैजिक मैं दिखाता हूँ।
यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था, मतलब गिटहब पे हम लोगों ने लिखा था नो नीड टू थिंकिंग। अभी यहाँ पे नहीं लिखा था। अब अगर मैं गिट लॉग करूँ तो यहाँ आ गया। कोई किसी को कोई डाउट? यस यू कैन नाम एनी ठीक ठीक सर, इसको एंटर मारते जाओ, आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे तुम लोग क्यू एंड प्रेस कर दोगे तो ये बाहर निकल जाता है यहाँ पे। ये देखो, नो नीड टू थिंक, ये भी आ गया ना। ये अगर मैंने गिट पुल किया तब की बात है। फिर मैंने कोई चेंजेस किए, मैं फालतू अब चेंजेस कर रहा हूँ। गिट एड डॉट गिट कमिट डैशन कुछ भी डाल दो। अभी इसमें आ गए चेंजेस, यहाँ नहीं आया है। यहाँ लाने के लिए मैं फिर गिट पुश करूंगा। यहाँ भी नहीं आया चेंजेस। देखो, इसमें नहीं आ दिखा नहीं रहा है, इसमें इन एक्सेस 26 है। मैंने किया गिट पुश, एक बार सिर्फ गिट पुश डैश यू वाला तुम्हें करना है, उसके बाद सिर्फ गिट पुश करना है। ठीक, अब देखो गिट पुल क्यों किया जाता है, अब मैं बता, रहने दो, नहीं काम है, क्योंकि अब टाइम की कमी है हम लोगों के पास, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो बंद करो। हाँ, सेटअप पेजेस। हाँ, one of the requirements of build the web is that the project should be not only hosted. Hosting means you are pushing your code to a remote repo. You should also deploy it. Deploy it means it should be accessible to the world. देखो, यहाँ देखो, create a GitHub। अरे यार, GitHub डॉक्स डाउन चल रहा है दूसरे प्रोफेशन से। हाँ, यहाँ MDN डॉक्स पे चलो। फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल गिट, नेक्स्ट साइन अप फॉर गिटहब अकाउंट वगैरह वगैरह चीजें, प्रेडिक्ट कोड, फालतू की चीजें हैं, ये सब हम लोगों ने सीख लिया है। फर्दर गिटहब नॉलेज, अरे कहाँ गया यार। यहाँ देखो, ये मैंने पुश किया। यू नीड टू टर्न द गिटहब पेजेस ऑन फॉर रेपो एंड देन गिटहब पेजेस सेक्शन योर साइट इज रेडी टू बी पब्लिश। सेटिंग्स में गया। सिंपली जो स्टैटिक पेजेस होते हैं उनके लिए गिटहब पेजेस अच्छी एक चीज है। हाँ था, नहीं पेजेस, सोर्स, पेजेस, requests, wishes and points issues currently public। ठीक है, फिर क्यों नहीं आ रहा है मेरा पेजेस? हाँ, यहाँ पेजेस देखो, यहाँ सिंपली तुम्हें पेजेस मिल जाएगा। डिप्लॉय फ्रॉम ब्रांच, ये सिंपल था। ब्रांच यहाँ पे नन की जगह पर एक मैं दूसरी जगह खोल देता हूँ। देखो, मेरे जो अभी जितने भी एक ही ब्रांच है मेन, और उसी पे सारे अच्छे वाले कोड पड़े हुए हैं। मैं क्या करूंगा, उसको बंद करूंगा। मैं क्या करूंगा, सेटिंग्स में जाऊंगा, यहाँ पेजेस पे। अभी तक मेरा कोई फ्रेंड इसे नहीं एक्सेस कर पा रहा है, लेकिन अब एक्सेस कर पाएगा। ठीक, और इसे मैंने सिंपली किया सेव। कस्टम डोमेन वगैरह मुझे कुछ नहीं देना है। फ्रॉम ब्रांच हो गया। जब ये मैं कर लूंगा, ठीक है। हाँ, week।
Resolution, configuring your pages वगैरह वगैरह चीजें। हाँ चलो ठीक है, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। देखो, एक बार मैंने रिफ्रेश किया तो योर साइट इज लाइव एट http://amartyapande.github.io/inaccess। अब देखो गाइस, मैं इसे सॉरी, इसे मैं कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में पेस्ट कर रहा हूँ। एक बार ट्राई करो तो तुम लोग इसे एक्सेस कर पा रहे हो। हाँ, यस सर। सेव करने के बाद तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद रिफ्रेश करो। ओपन हो रहा। गुड। देखो यार, HTTP लगा है, HTTPS लगा है, हुआ ना। So this was it about how you can deploy your website. Since it is a static website, you can deploy it using GitHub Pages. हाँ, एक और बात, GitHub Pages का यूज तुम सिर्फ स्टैटिक पेजेस ही डिप्लॉय करने के लिए यूज कर सकते हो। स्टैटिक इन द सेंस जिनका कंटेंट चेंज नहीं होगा, बीट रिएक्ट की वेबसाइट हो जाए या फिर जो भी अलग अलग। ठीक। अच्छा, अब कोई डाउट है तो तुम लोग पूछ लो। हेलो, एनी डाउट जूनियर्स? आई थिंक मैंने कुछ टॉपिक्स छोड़े हैं, एक बार देख लूं वो बताने लायक हैं। हाँ, मैंने गिट डिफ छोड़ा है। हाँ, यहाँ देखो, इनिशियल कमिट, ऐड रीडमी, फिक्स बग, लेटेस्ट कमिट वगैरह वगैरह चीजें। गिट ऐड यूज करने के एक और काम क्या है, मैंने इतने पहले जाके उसको ऐड कर दिया, अभी कमिट नहीं किया, फिर मैं इसमें चेंजेस करते रहूंगा अनटिल अनलेस मुझे रिक्वायर्ड फीचर ना मिल जाए। गाइस, आज के लिए मेन कंटेंट यही था जितना तुम लोगों को इनएक्सेस में और विल्ड वेब में पार्टिसिपेट करने के लिए चाहिए। उसके अलावा तुम्हें 2-3 चीजें मैं और एज अ ईस्टर एग समझ लो। फॉर एग्जांपल, ये मेरी वेबसाइट थी, ये मैंने विल्ड वेब के लिए बनाई थी, जिसे मैंने वर्सेल पे होस्ट किया है, क्योंकि कई बार जो गिटहब पेजेस हैं वो अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो अगर तुम लोगों को भी कोई भी इशू आए तो तुम लोग भी वर्चुअल या फिर रेंडर यूज कर सकते हो। यू आर फ्री टू डू सो, बट तुम्हारी जो लिंक होगी वो एक्सेसिबल होनी चाहिए और तुम अपने जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको शोकेस कर पाओ। डाउट है? यस सर। भाई देखो, मैंने जो जो चीजें बताई हैं गिट एंड गिटहब, ये ऐसी चीजें हैं कि तुम्हें हमेशा काम आएंगी, पहली बात। दूसरी बात, कई लोगों को 3 से 4 कमांड्स के अलावा जिंदगी में कुछ नहीं याद होता है, और उतना ही एनफ होता है। तो इसलिए तुम्हें गिट, ये जो भी कमिट्स एंड एमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अभी कुछ मैं मस्त चीजें बताने वाला था। हाँ यार, चलो देखते हैं। हमारे पास 2 से 3 मिनट है, 11 बजे खत्म करना था, हम 11:05 तक खींच के ले जाएंगे। तुम्हें अब कुछ बढ़िया चीजें दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। चलो देखते हैं फायरफॉक्स। अभी करने मत लगना, क्योंकि उसकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं। ये है एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, देख रहे हो? देखो यहाँ, देखो इसमें देखो कमिट्स के नंबर्स 9,56,830 कमिट्स, देख रहे हो? ये देखो यहाँ पे कंट्रीब्यूटर्स 5,000 प्लस। यहाँ देखो, यहाँ ये कंट्रीब्यूटर्स, ये है एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। If I have collaborator who changes a file to remote and I change the same। हाँ देखो, इसे मैंने नहीं बताया था, यहाँ पे सिर्फ लिख के छोड़ दिया था, वो मैं समझा दे रहा हूँ। बिल्कुल समझा ही देता हूँ। ये देखो, पुलिंग अपडेट्स फ्रॉम योर लोकल फाइल्स प्रिवेंट्स द कोड कॉन्फ्लिक्ट्स, जो मेरा गिटहब था। मैं फिर से चलता हूँ उसी पर गिटहब। अब तो मुझे याद है, अमर्त्य पांडे, शायद इनेक्सस बनाया था मैंने।
गाइस इमोजीज वगैरह भी फिलहाल के लिए मत ही यूज करो, अगर डाउट्स वगैरह हो तो ही यूज करो, ठीक है। हाँ, आई वाज सेइंग, देखो यहाँ देखो, हाँ प्रियांशु ध्यान देना, बाकी लोग भी ध्यान देना। जो लास्ट कमिट था मेरा वो DWACGA से था, ये कमिट मैसेज था जिससे तुम पहचान सकते हो कमिट भाई, क्योंकि देखो तुम ये जो भी चीजें हैं NF ये हैशिंग के थ्रू मिलती हैं, इसको तुम नहीं याद रखोगे, तुम हमेशा कमिट मैसेज याद रखोगे। एक बार क्लियर करते हैं और फिर से चलते हैं गिट लॉग की तरफ। गिट लॉग ये है लास्ट कमिट, हाँ बस इसको ये डाउट खत्म करके चलते हैं, ठीक। मैंने फिर से इसको ठीक किया। अब मेरा एक दोस्त है जो नहीं मान रहा है, वो कह रहा है कि नहीं भाई ये इनएक्सेस वाली जो वेबसाइट है वो एकदम फ्लॉलेस होनी चाहिए, और उसने ये जो है चेंज ये पुश कर दिया, ये कमेंट कर दिया यहाँ पे, जो भी है माय फ्रेंड डिड ऑन हिज सिस्टम, ताकि मुझे याद है कि मेरे दोस्त ने किया है। स्पेलिंग थोड़ा फ्राइड हो गया है, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे मैं कमिट कितने किया मैंने, 6 कमिट्स किए हैं। हाँ एक मैं तुम लोग को गिट लॉग का ही देंगे। देखो डैश डैश वन लाइन का मतलब होता है एक एक लाइन का हर होगा। जैसे सबसे पहले इनिशियल कमिट हुआ, उसके बाद बचा लो हुआ, उसके बाद डूइंग समथिंग हुआ, उसके बाद नो नीड टू थिंक हुआ, उसके बाद DWACGA से हुआ। 1 2 3 4 5, अभी तक 5 कमिट्स हो गए। बंद करो, हाँ ठीक है। और यहाँ पे 6 कमिट्स हैं। प्रियांशु तुम पूछ रहे थे ना क्या होगा, अब यहाँ पे देखो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा दोस्त जो है उसको ठीक कर चुका है, और मैंने एक कुछ तो लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने लॉरेम 5 लिख दिया, ठीक, लॉरेम मत जो भी हो, और मैंने यहाँ भी कमिट कर दिया, जैसे आई डिड दिस ऑन माई मशीन, सॉरी मैंने ऐड नहीं किया था। अच्छा हाँ देखो यहाँ डैश एम है ना, यहाँ पे डैश ए डाल दोगे वो ऑटोमेटिकली सब कुछ ऐड भी कर देगा। एक सेकंड, सॉरी मैंने उल्टा किया, डैश एम डैश ए नहीं होना चाहिए, डैश ए डैश एम होना चाहिए, ठीक। ये हो गया ना, डैश ए का मतलब ये ऐड कर देगा। यहाँ ध्यान दो, अब देखो, अब मैं फिर से तुम लोगों को दिखाता हूँ। मैंने गिट लॉग किया, यहाँ पे देखो जो लास्ट कमिट है वो आई डिड दिस ऑन माई मशीन है, ये जो भी इसको गार्बेज बोलो, गार्बेज के बाद आई डिड दिस ऑन माई मशीन, ये लोकल में चल रहा है, और रिमोट में क्या चल रहा है, गार्बेज के बाद माई फ्रेंड दिस डिड दिस ऑन हिज सिस्टम। मैं अपने कमिट्स ऑब्वियसली पुश करूंगा, गिट पुश, आया समझ में आया। failed to push some references, objects were rejected because the remote contains work that you do not have locally। तुमने लोकली कुछ चीजों में चेंजेस नहीं किए हैं, लेकिन जो रिमोट में है वो चेंजेस हो चुके हैं। प्रॉब्लम ये आएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए भाई फोर्सफुली लोग पुश करते हैं, जैसे मैं इसको गिट पुश डैश डैश फोर्स कर दूं, फोर्स था ना आई थिंक, फोर्स पुश, तो ये फोर्सफुली पुश तो कर देगा, तो इसकी जगह पर ही ओवरराइट हो जाएगा। लेकिन ये एक रिकमेंडेड चीज नहीं है, इसके बारे में तुम आगे जब डॉक्यूमेंटेशन और चीजें पढ़ोगे तब तुम करोगे। आज के लिए बस इतना ही, मेरा मन था मैं तुम लोगों को कुछ ओपन सोर्स के बारे में बताऊं, रहने देते हैं आज। हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया, पुल्स एंड फोक्स। देखो तुम्हें कोई भी, अगर मैंने कोई बनाया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने डूस्ट बनाया है, github.com अमर्त्य पांडे डूस्ट, ठीक। अब तुम्हें मन है कि मैंने जितना अभी तक बना लिया है, तुम उस पर कुछ दूसरा काम करना चाहते हो, ठीक, तो तुम सिंपली इसे फोर्क करोगे अपने नाम पे, और फिर उसमें चेंजेस करोगे। तो दो चीजें होती है, एक फोर्क होता है, एक फिर मर्जिंग होती है, ठीक है ना, पुल रिक्वेस्ट PR मर्ज, फिर तुम यहाँ पे इसमें ले आके जोड़ दोगे तो वो हो जाएगा। दिस वॉज इट फॉर टुडे, पुल रिक्वेस्ट। कोई डाउट्स है तो बताओ, क्योंकि आज
का जो कंटेंट था वो सिंपली इतना ही था, मैंने थोड़ा एज एन एक्स्ट्रा बता दिया है। हाँ, एक और बात, अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पर्सनली भी तुम लोग पिंग कर सकते हो। हाँ, डिफरेंस बिटवीन फोर्क एंड क्लोन, जब तुम क्लोन करते हो तो तुम सिर्फ दूसरे की रेपो को डाउनलोड करते हो। फॉर एग्जांपल, मैं गिटहब पे गया, मैं और मुझे ये अपना सत्य सेतु वाला जो है, अरे ये भैया प्रोजेक्ट है मेरा, तो बाद में इसको नहीं करूंगा। ये देखो, ये मेरा एक सर्टिफायर वाला प्रोजेक्ट है, ये मैं क्लोन कर रहा हूँ। कंट्रोल अल्ट टी, गेट क्लोन, कंट्रोल शिफ्ट वी, पांडे, अरे यार सॉरी, नहीं, मैं एसएच से करूँगा, क्योंकि मैं एसएच यूज करता हूँ इसलिए मैं एसएच से ही करूँगा। तुम लोग के लिए मैं एसएच वाला भेज दे रहा हूँ, वो तुम लोग देख लेना जरूर। हाँ, यहाँ पे गेट क्लोन, जिन्हें डाउट है वो रुके, जिन्हें जाना है वो जा सकते हैं, और अगर ये वाला पार्ट सुनना है तो रुक जाओ। ठीक, गिट क्लोन कर लिया मैंने। गिट क्लोन से कुछ नहीं हुआ, मैंने बस उसका डाउनलोड किया। गिट क्लोन इज सिंपली डाउनलोड ऑन द डिवाइस, सिंपल, नथिंग मोर नथिंग लेस। फोर्क क्या है? अब क्लोन मैं दोनों की वेबसाइट दोनों की कर सकता हूँ, लेकिन देखो यहाँ फोर्क क्या आ गया, you cannot fork because you own this repository and you are not member of any organization। ऑर्गेनाइजेशन वाली बात छोड़ दो, जो मेरी चीज है मैं उसमें फोर्किंग नहीं कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली उसमें चेंजेस कर सकता हूँ। और रही बात फोर्क की, तो फोर्क कैसे काम करेगा? देखो, मैंने फायरफॉक्स खोला, यहाँ पे मैंने फोर्क किया, तो अब इस पे मेरा हो गया। मैं अभी भी मोज़िला फायरफॉक्स मैं इसको अभी भी क्लोन कर सकता हूँ, ठीक, लेकिन इसमें अगर चेंजेस करूंगा तो मैं फिर मेरे पास कुछ ऐसा रेपो नहीं है जिसपे मैं पुश कर पाऊँ। तो फोर्क क्या है, तुम्हारे यहाँ एक सेव हो जाती है एक रेपो की कॉपी, और फिर तुम उसमें पुशेस करते जाते हो, और बाद में यहाँ पे फोर्क को मर्ज कर सकते हो। क्रिएट अ न्यू फोर्क, व्यू एग्जिस्टिंग फोर्क, मैंने फिर से फोर्क देखा और इसको पीआर को मर्ज किया। वो समझ में आया होगा। अगर यूजिंग एनालॉजी मुझे समझानी हो तो फोर्क सिंपली क्या है कि तुम्हारा जो घर का रास्ता है वो जा रहा है और तुमने एक नया रास्ता बना दिया क्योंकि तुम्हें लगता था कि वो शॉर्टकट है। आयु समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल देखो, तुम्हारे दोस्त के घर के बीच ये एक रास्ता है, तुमने गिट क्लोन किया तो तुमने याद कर लिया भाई ये रास्ता, ये मेरे घर जैसा है और ये सामान उठा के यहाँ रख दो। फोर्क में क्या हुआ, जैसे तुम्हारा दोस्त ले गया तुम्हारा कोई खिलौना कि भाई मुझे अपने घर पे दे दो, मैं थोड़े दिन खेल के लौटा दूंगा, वो क्लोन है, उसने कुछ चेंजेस नहीं किए, उसके पास कुछ चेंजेस के को पुश करने के भी तरीके नहीं है। और क्या, तुम्हारे दोस्त ने बोला कि भाई एक काम करो ना, ये जो तुम्हारा खिलौना है उसके बारे में मुझे बताओ और मुझे दे दो, मैं उसमें कुछ चेंजेस करूंगा और फिर तब तुम्हें वापस लौटा दूंगा, अगर अच्छा हुआ तो। Any other doubts, guys? Those who don't have any doubts can leave. That was all for today's session. Hope you enjoyed it, and if you have any kind of problem in any domain, be it open source contribution, be it committing, अगर तुम लोग भाई गिटहब पे कमिट नहीं कर पा रहे हो तो मुझे जरूर बताओ, मैं हेल्प कर दूंगा। All the best for Build the Web and in Access also. Good night.